دشک بعد محرم کے جلوس پر سے پابندی ہٹ چکی ہے۔ اس سال 2023 میں جموں کشمیر میں محرم کے جلوس بڑے ہی احترام کے ساتھ نکلے۔ آج اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے شمیر شمسی صاحب سے، جو کہ پچھلے کافی سمے سے جموں کشمیر کی آزاداری کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، مانگ کر رہے ہیں وہاں کے جلوس کھلے جائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شمیر شمسی صاحب۔ شمسی صاحب، کیسا لگا ان جلوسوں کو جب آپ نے سنا کہ وہ جلوس کھل گئے ہیں؟ پہلی پرتکریا کیا رہی ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ جموں کشمیر کے جلوسوں کے لیے ہم لوگ لگاتار تقریباً 4-5 سال سے کوششوں میں تھے۔ 2019 میں ایک مجلس جو جموں میں ہوئی تھی، اس کے بعد ہم لوگوں نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا، اور 2020 میں ہم لوگوں کی ملاقات امت شاہ صاحب سے ہوئی تھی۔ امت شاہ صاحب سے ہم لوگوں نے 2 باتوں کی مانگ رکھی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر پرمپراگت روٹس پر پرمپراگت جو جلوس ہیں ان کی بحالی کی جائے، کیونکہ سبھی کچھ وہاں پہ آرام سے چلنے لگا تھا 370 ہٹنے کے بعد، چاہے وہ امرناتھ یاترا ہو، چاہے اور تمام طرح کی چیزیں ہوں، وہ سب ہونے لگی تھی۔ تو وہاں پر ہم لوگوں نے اس کی مانگ کی تھی کہ اب ان کو بھی شروع کیا جائے۔ 2021 میں محرم میں جو ہے وہ سانکیتک طور پہ تقریباً 5 یا 6 جلوسوں کا جو ہے وہ دیا گیا، مگر وہ سبھی جلوس وہ تھے جو شیعہ بہول علاقوں میں ہی اٹھ رہے تھے۔ لیکن ہم لوگوں کی جو مانگ تھی ان 2 جلوسوں کی، کہ جو عاشورہ اور 8 محرم کو، جو سب سے اہم جلوس کشمیر کا تھا وہ 8 محرم کا جلوس تھا، جس کے لیے لوگ ہر بار احتجاج کرتے تھے، اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، اور بہت لوگ گرفتار ہوتے تھے، تمام طرح کی چیزیں آتی تھیں، اور ایک پورا دن پرشاسن بھی مشقت میں رہتا تھا، اور عزادار بھی جو ہے وہ پریشان رہتے تھے ان سب چیزوں سے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی عزاداری پوری طرح سے بحال ہو۔ اس سلسلے میں سب سے اہم کردار اگر کسی کا ہے تو جس کو کہا جائے مین بیہائنڈ دا کرٹن، وہ جناب اجیت دیوبال صاحب، کہ جن سے ہم لوگوں نے اس معاملے میں بہت امید کی، اور بہت انہوں نے ہماری امیدوں میں کھرے اترے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایل جی منوج سنہا صاحب، جنہوں نے جو غازی پور کے رہنے والے تھے اور عزاداری اور تمام شیعوں کے جلوسوں اور ان سب چیزوں سے واقف تھے اچھی طرح سے، ان کا بہت اہم کردار جو ہے وہ اس معاملے میں رہا، اور سب سے زیادہ سینٹرل گورنمنٹ نے اس میں ہمارا سہیوگ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے، سیکیورٹی ایجنسیز نے، ان تمام لوگوں سے جو بار بار ملاقاتیں ہوئیں اور سب چیزیں ہوئیں، اور ہم لوگوں نے یہ کوشش کی ہر بار کہ صاحب کسی بھی طرح سے ان پروسیشنز کی پر سے بین ہٹے، اور وہاں کا جو ماحول ہے، ہم نے بار بار کہا کہ جو عزاداری کے جلوس ہیں وہی کشمیر کی فضا کو ہموار کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوں گے، اور وہی چیز ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور مولا کا اعجاز ہے کہ وہی چیز ثابت ہوئی، اور 8 محرم کا جلوس اس طرح کا، اس کا اتنا پرامن جلوس جس کو کہا جائے، اتنا منظم جلوس کہ جس میں ایک ذرا سا بھی نہ تو کسی طرح کا کوئی پولیٹیکل نعرے بازی، نہ کسی طرح کی، صرف عزاداری۔ اور ہماری قوم نے، کیونکہ ہماری عزاداری جو ہے وہ ہماری شہزادی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی امانت ہے، اور ہم نے کبھی اس امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ ہمارے چاہے ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں کہ لکھنؤ میں جو تھا وہ بادشاہوں کی، نوابوں کی حکومت تھی، یہاں پر شیعہ نوابوں کی حکومت تھی، مگر جس وقت پہ آزادی کی جنگ ہوئی تب بھی ہم لوگوں نے کبھی بھی، ہماری قوم نے عزاداری اور آزادی کی جنگ کو ایک نہیں کیا۔ عزاداری ہماری جو ہے وہ امانت ہے جناب فاطمہ کی، اس میں ہم کبھی خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے کشمیر میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر تمام طرح کے الزامات اس جلوس کے اوپر لگائے جاتے تھے، جو کہ جھوٹ تھے اور بے بنیاد تھے، جس میں ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی اپنی آرام کرو نیتی کے تحت جو ہے وہ گورنمنٹ کو مس گائیڈ کرتے تھے، اور لگاتار مس گائیڈ کیا جا رہا تھا۔ لیکن یہ کہ جس طرح سے سرکار کا پریشر تھا اس کو کرنے کے لیے، اور ہم لوگ کیونکہ لکھنؤ میں تمام چیزیں دیکھ چکے تھے ایڈمنسٹریشن کی، ان جو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کی، تو اس سے ہم لوگ لگاتار آگاہ کرا رہے تھے گورنمنٹ کو کہ صاحب اب یہ کہیں گے، اب یہ کہیں گے، اب یہ کہیں گے، یہ اٹھانا نہیں چاہتے، باقی سب ماحول ٹھیک ہے۔ اس ساری باتوں پہ ہم کھرے اترے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کشمیر میں آج پوری طرح سے عزاداری بحال ہوئی ہے۔ کل ایک ایتہاسک جو وہ تھا کہ وہاں پہ جو زلزلہ کا جلوس تھا، جس کو حکمراں کشمیر اس کی لگام کو پکڑ کے چلتے تھے، اس روایت کو بھی کل منوج سنہا صاحب نے مکمل کیا، اور وہ سیاہ کپڑوں میں وہاں تشریف لائے، انہوں نے زلزلہ کا بوسہ لیا، اور زلزلہ کی لگام پکڑ کے اس کے آگے چلنے کا جو روایت تھی اس کو بھی مکمل کیا۔ شمسی صاحب، اس کشمیر کی آزاداری کو کھولنے کے لیے کئی احتجاج آپ نے کرے، کافی مشقت کر رہے تھے اور پچھلے کئی سالوں سے لگے ہوئے تھے۔ جب یہ ایتہاسک فیصلہ آیا
गवर्नमेंट की तरफ से कि वहाँ जुलूस उठेंगे, तो पहली प्रतिक्रिया क्या रही आपकी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वहाँ की आवाम बहुत शिद्दत के साथ इस पे एहतजाज करती रही। हम लोगों ने बहुत कोशिशें की। जिस वक्त के ऊपर ये खबर आई तो आप समझिए इतना दिल बेचैन हुआ कि बदल चाह के कश्मीर में चले जाए। और जब हमने वहाँ के लोगों को बताना शुरू किया और उनको ऑर्डर्स भेजे कि साहब ये ऑर्डर्स हो गए, तो वो लोग ज़ारो खतार वहाँ रो रहे थे और इतने उतावले थे कि वो रात भर उस इमाम बाड़े में जो है बैठे रहे, जो गुरु बाजार में है, कि हमको यहाँ से जुलूस निकालना है, ये करना। और बहुत ही आप समझिए ऐसे तासुरात थे वहाँ के लोगों के कि हम लोगों का दिल भरा जा रहा था। और किस तरह से जो है वो लोगों को किस मुसीबतों से और कितनी शहादतों के बाद ये हासिल हुआ है, आप इसका अंदाजा लगाइए कि उनके लिए कितनी अहमियत होगी सलम की। कौम के कई मसले मसाइल में आप आगे आगे रहते हैं। ये जुलूस आज़ादारी इस बार जो कश्मीर वाली खुली है, ये कितनी बड़ी आपके लिए, मतलब खुशी की बात तो नहीं कहूँगा क्योंकि गम का मसला है, मतलब एक जो होता नहीं है कि आपकी मेहनत रंग लाई है, तो उसके लिए क्या? देखिए, अज़ादारी के लिए मेहनत का जो मामला है वो एक एक अज़ादार की मेहनत होती है, चाहे जो अलम सजाने वाला हो, चाहे ताबूत सजाने वाला हो, चाहे कुछ। हम अपनी इन तमाम चीज़ों को उसी अज़ा की खिदमत की तरह मानते हैं, ना कि अपने किसी अचीवमेंट की तरह उसको अपने साथ लगा के चलें या करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का फजल करम है कि हम लोगों ने अब तक जो कुछ भी किया वो कौम की बका के लिए किया, और अल्लाह का फजल करम है कि हमने कौम से कभी बदले में कुछ नहीं मांगा कि आप इसके बदले ये दें। आप अगर देखें भी तो जिस वक्त में वक्फ के आंदोलन चल रहे थे तो हमने हमारे होटल को तोड़ा गया, हमारे पर तमाम तरह के, लेकिन हमने कौमी मदद उसमें कभी भी नहीं मांगी। और लोगों से कहते कि नहीं मेरा रेस्टोरेंट टूट रहा है, आ जाओ, ये हो रहा है, आ जाओ। हमने कभी इस तरह की कोई चीज़ कभी भी अंजाम नहीं की, कभी इस तरह की कोशिश नहीं की। अज़ादारी की खिदमत हर अज़ादार का फरीदा है और वो जिस हैसियत में भी जहाँ से उसकी खिदमत कर सकता है वो करे। शमसी साहब, कश्मीर के जो लीडर्स थे, जो कश्मीर के रहने वाले हैं, बाशिंदे, यहाँ तो आप तो चलिए लखनऊ से थे, आपने यहाँ से बैठ के वहाँ की आज़ादारी के लिए आवाज़ उठाई, एहतजाज करे। वहाँ के जो लीडर्स हैं उनका क्या इस आज़ादारी को लेकर योगदान रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो वहाँ के उलमा हैं उनमें कुछ लोगों ने हमारी मदद की और कुछ लोगों ने हमसे ये तक कहा कि आप हमसे सब मदद चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन हमको सामने ना लाइए, क्योंकि जो हालात हैं वो लोगों के हुकूमतों से उठ चुके हैं। और अगर हम कहेंगे खड़े होकर कि नहीं साहब अज़ादारी का जुलूस खुल रहा है, ये हो रहा है, तो वो हमारी बात को नहीं मानेंगे। इस मामले में चाहे तो इमरान अंसारी साहब हों या और उनके खानवादे के जो लोग हों, उन सब के जो ताउन रहे वो बिल्कुल उसमें कहीं से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब कल पहुंचे और पहुंच के उन्होंने सियासी बयानबाजियां की, हालांकि उनके बयानों के ऊपर लोगों ने उनका बहुत जबरदस्त रद्द अमल दिया कि भाई आपकी हुकूमत में ये जुलूस क्यों नहीं खुले थे। आज जो आप सीना तनी करते आ रहे हैं, मातम करते आ रहे हैं, तो ये क्या नौटंकी के रूप में ना देखा जाए। आपने वहां पर इतने साल आपकी हुकूमत रही, क्या कभी आपने सिलसिले में शियों से बात की, कभी आपने अंजुमनों से बात की, कभी आपने उलमा से बात की कि नहीं साहब ये खुलना चाहिए? आप कह रहे हैं कि मैं सुलझना की लगाम पढ़ के 70 मील चलता था। जो भी आप करते थे वो आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए करते थे। जिस वक्त अज़ादारी बंद हुई, आपने या महबूबा मुफ्ती सईद ने या और जितने भी लोग वहां पे पॉलिटिकल ग्रुप्स रहे हैं, उनमें किसी ने भी अज़ादारी इमाम हुसैन के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। लगभग 2019, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि 2019 या 20 में आपकी अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी इसी आज़ादारी के सिलसिले में। तो वो मुलाकात में क्या बातचीत हुई और इसके बाद इतना साल 2023 में खुली है, तो ये बीच का इतना टाइम क्यों लगा? अगर पहले की देखिए, हम लोग की जो मुलाकात हुई थी अमित शाह से वो 2020 नवंबर में हुई थी मुलाकात। उसके जब हम लोग कश्मीर में ही थे, उस मुलाकात के बाद हम लोग कश्मीर गए थे और अचानक ही ऐसा हुआ कि हमारे मामू जनाब कल्बे सादिक साहब का इंतकाल हो गया, तो कश्मीर का दौरा बीच में ही छोड़ के हम लोगों को वापस आना पड़ा लखनऊ। उसके बाद इस मामले में हम लोग की मीटिंग दर मीटिंग चली रही थी। फिर 2021 में जबकि पूरे इंडिया में लॉकडाउन था, लेकिन कश्मीर में जो था वो उन्होंने सांकेतिक तौर पे कुछ जुलूसों की इजाज़त दी, जो कि एक बहुत अहम फैसला था और वहाँ पे लोगों के जज्बात को समझने वाला फैसला था। और खैर वो हुआ, लेकिन 8 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के जुलूस उसी तरह से रुके रहे, क्योंकि ये मेन जुलूस थे और बाजारों से गुजर के आना था। लाल चौक जो सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है श्रीनगर का, वो उसमें से वो जुलूस आने थे। तो वो होते होते खैर 2023 की जब ये बारी आई तो 2023 में हम लोगों ने इस मामले में बहुत
जद्दोजहद की और बहुत कोशिश की, और सभी लोगों से बात करके, इसमें खास तौर पे जी देवपाल साहब जो NSA हैं, उनकी वजह से जो है वो ये चीज़ बहुत हो पाई। और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आपका एक ये राइट है, और अगर हम सब चीज़ वहाँ पर कर सकते हैं तो अज़ादारी के पोजीशन भी कर सकते हैं। आप सोचिए कि सबसे संवेदनशील इलाका गुरु बाजार से उठ के डलगेट तक इस जुलूस का आना एक मौजूदे से कम नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कोई ना तो सिक्योरिटी की कोई ऐसी परेशानी आई, ना किसी तरह की ट्रैफिक की परेशानी आई, कुछ भी। अज़ादारों ने एकदम मुनज़्ज़म तरीके से, आप देखें कि ये हमारी कौम की बहुत बड़ी खासियत है कि हमारी कौम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जुलूस और अलम उठाती है विदाउट एनी वॉलंटियर, विदाउट एनी गाइडलाइन। वो अपने जुलूस को उठाने में, अज़ादारी को चलाने में वो एक्सपर्ट है। अपनी माँ की कोख से पैदा सीख के आते हैं कि उनको अज़ादारी कैसे करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। आप लखनऊ में भी देखें, तकरीबन 3 से 4 लाख लोगों ने 8 मुहर्रम के अलम में शिरकत की, लेकिन एक भी वॉलंटियर या एक भी ऐसा आदमी आपको नहीं दिखाई पड़ा होगा। जबकि दूसरी कौमों को हम देखते हैं 5-5 हज़ार लोगों के जुलूस जा रहे होते हैं और उसमें वॉलंटियर्स खड़े कोई लाइट्स दिखा रहे हैं और कुछ झंडियां दिखा रहे हैं कि इधर चलना उधर चलना। ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ से लेकर कश्मीर तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को यही चीज़ सबसे बड़ी जीत है अज़ादारों की। ये आखिरी सवाल, बड़ी अच्छी बात है कि आपकी 2019 से की गई मेहनत रंग लाई। अब कश्मीर में अज़ादारी खुल गई, 8 मुहर्रम का जुलूस बहुत ही शान से निकला। अब आज की डेट में शमीर शमसी साहब, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कश्मीर के लोगों के लिए, वहाँ के अज़ादारों के लिए? देखिए, कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अहम पैगाम ये है कि हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें दुनिया भर की अज़ादारियों को और इस्लामी ममालिक को अगर देखें तो उनके रिस्ट्रिक्शन से कहीं ज़्यादा आसानियाँ जो है वो हिंदुस्तान की अज़ादारी में, और हिंदुस्तान में जितने रूप में अज़ादारी होती है उतनी दुनिया में कहीं भी नहीं होती है। तो मुसलमान जो वहाँ के जो मोमिनीन हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके से वो मिसगाइड किए जाते हैं या उनको लगता है कि नहीं साहब हमको इंडिया के ख़िलाफ़ बात करनी है तो वो पहले एक बार हिंदुस्तान के अपने तमाम चीज़ों को जो उनके पुरखों ने यहाँ करी और जो उनको यहाँ आसानियाँ हैं और जो आसानियाँ मज़ीद हो सकती हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर ये तय करें कि हाँ वाकई में जो है वो हिंदुस्तान हमारे लिए क्या है, और उसके बरक्स उन ममालिक में कि जो ममालिक आपको हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने में लगे हैं, वहाँ पे अज़ादारों की हालत और अज़ादारों की अगर उसको देखें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ने आपके लिए कितना बड़ा जो है वो करम रखा कि आप आज ऐसे मनहूस मुल्कों में नहीं गए जहाँ जो है वो अज़ादारों को बमों से उड़ाया जा रहा है या गोलियां मारी जा रही हैं, चाहे वो किया जा रहा है। आज आप एक ऐसे सेफ मुल्क में हैं कि जहां आप खुल के अपनी अज़ादारी और अपनी तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ शमीर शमसी साहब, जिन्होंने कश्मीर की अज़ादारी को लेकर हमसे बात करी। लखनऊ से रिबुआ टाइम्स के लिए रिजवान हैदर।